دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ خالد صاحب کیسے ہیں؟ قاری صاحب میں نہیں ہوں، میں قاری صاحب نہیں، میں چھوٹا سا انجینئر صاحب ہوں۔ اچھا 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 جی اچھا، تو یہ عالموں کو گدھا بولا گیا ہے قرآن میں، ایسا آپ کہہ رہے ہیں؟ بھائی کیا کہتے ہیں، جو یہودی کے عالم تھے انہی کو بولا گیا ہے نا، کہ علم جو تکبر رکھے ہیں انہی کو بولا، یہ گدھے اپنے سر کے اوپر پیٹھ کے اوپر جو علم کا بوجھ لے کر چل رہے ہیں، انہی کو تو گدھا اللہ نے ہی بولا ہے۔ جو آج بھی تکبر کرتے ہیں، جو اپنے اوپر علم کا بوجھ لے کر چلتے ہیں، تو گدھا ہی ہوں گے نا بھائی۔ ہاں 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 جو ہاں، تکبر کرے گا تو گدھا ہی ہوگا، جو تکبر نہیں کرے گا وہ تو صحیح عالم ہے۔ ہاں ہاں، صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے۔ قرآن میں ہی بولا گیا نا یہودی کے عالموں کو، تو قرآن میں جب آ گیا تو قیامت تک کے لیے رہے گا، جو بھی تکبر کرے گا ان کے ساتھ وہی آیت لاگو ہوگا جو اس کے پہلے لوگوں کے اوپر ہوا ہے۔ ہاں صحیح صحیح۔ کون سی جماعت سے ہیں بھیا آپ؟ میں تو الحمدللہ کیول مسلمان ہوں، اور کوئی جماعت سے نہیں۔ ارے نہیں، کیول مسلمان تو بھائی دیکھو، ہر کوئی کہتے ہیں شیعہ رافضی کے ہم مسلمان ہیں، قادیانی بھی کہتے ہیں۔ نہیں، میں نہ قادیانی ہوں، نہ دیوبندی ہوں، نہ بریلوی ہوں، نہ اہل حدیث ہوں، نہ کچھ ہوں، میں کیول مسلمان ہوں، اللہ کے نبی کے طریقے چلنے والا۔ ایسا تو جو ہے میں کیول مسلمان ہوں بھائی جان، اور ایسا کچھ نہیں، نہ میں دیوبندی، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، نہ سنی، نہ جماعتی، نہ قماجی، نہ خواتی، کچھ نہیں، کیول مسلمان الحمدللہ۔ ابھی تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کون سے فرقہ صحیح ہے، دیوبندی صحیح ہے، بریلوی صحیح ہے کہ کون صحیح، ہمیں تو پلے نہیں پڑتا۔ میں تو قرآن اور حدیث پڑھتا ہوں تو وہی سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ نبی نے کہیں یہ نہیں بتایا کہ اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی، کچھ نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہیں۔ اب پتہ نہیں کون سا فرقہ نکال دیا ہے۔ آپ کو کوئی جماعت سے ہیں کیا؟ نہیں، ہم تو بریلی بھی ہیں بھائی۔ اچھا بریلوی ہیں، چلیے الحمدللہ۔ تو مطلب جیسے مان کے لیے کہ حضرت بریلوی، مطلب اگر ہم کو بننا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ بریلی ان کو بننا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ جیسے مطلب اگر ہم بریلوی بننا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ تو کرنا کیا پڑے گا؟ مسلمان بریلوی ہے، تو مسلمان ہے یہ تو مسلمان میں ہمیں آپ بریلوی کہیے، کوئی دقت نہیں، کیا فرق ہے اس سے؟ ہم مسلمان کیول ہیں۔ ہاں، اب بریلوی کے لیے کچھ اگر نیا کلمہ، نیا کچھ ہو تو بتائیے۔ دیکھیے ایسا ہے جی آپ اتنی چھوٹی سی بات نہیں سمجھ رہے ہیں، جی اور آپ کہتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کو ہی مانتے ہیں۔ بھائی قرآن حدیث پڑھتے ہیں، جو چیزیں حضرت سمجھ میں آتا ہے اس کو فالو کرتے ہیں۔ سنو، بنو امیہ، بنو ہاشم جی اور ایسے بھی بہت سارے قبیلے تھے۔ جی 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 حالانکہ وہ مسلمان ہی تھے لیکن قبیلے کے نام سے جانے جاتے تھے۔ اچھا 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 ایسے ہی بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث ہیں، اچھا اچھا اچھا۔ ہے نا؟ تو اہل حدیث اور دیوبندی کے نام سے جانے کیا جاتے حضرت؟ ہیں۔ میری بات سنیں، میری بات جی سنیں۔ جی 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 وہ ایک قبیلے کے نام سے جانے جاتے ہیں کہ بھائی ہم سمجھ گئے ہیں، جیسے اہل حدیث، بریلوی اور دیوبندی قبیلے کے نام سے آج جانے جاتے ہیں، تو مطلب یہ یہ آج سے نہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ تو یہ سب تینوں جنت میں جائیں گے مطلب نا، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی؟ جنت میں دیکھو، جنت میں جو جائے گا وہ اعتقاد کے بنا پہ جائے گا۔ مطلب اعتقاد سمجھتے ہیں؟ اعتکاف وہی سنے ہیں کہ مطلب جو 10 دن کے لیے ہم لوگ رہتے ہیں رمضان مہینے میں۔ حضرت تھوڑا پڑھے کم ہے، پڑھائی تو ہم انجینئرنگ لیول کی ہیں لیکن پڑھتے ہیں تو لوگ کوئی کہتا ہے میں دیوبندی ہوں، کوئی کہتا ہے اعتکاف نہیں، اعتقاد کی بات کر رہا ہوں۔ اعتقاد سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ نہیں حضرت، بتائیے۔ جب آپ کیسے مسلمان ہیں جب آپ اعتقاد نہیں جانتے نا، جیسے اب ہم ملا جلا کر ابھی نئے مسلمان بنے ہیں، اس سے پہلے مسلمان کیا ہندو تھے؟ پہلے ہندو تھے؟ اس سے پہلے مجھے خود نہیں پتا تھا میں کیا تھا، لیکن ابھی مسلمان تھوڑا دن ہوا بنے الحمدللہ۔ ارے کتنا دن پہلے مسلمان؟ 5-6 مہینے ہوا۔ تو 5-6 مہینے پہلے کیا کرتے تھے؟ شراب پیتے تھے، گانجا پیتے تھے، چرس پیتے تھے، افیم پیتے تھے، سور کھاتے تھے۔ دنیا کی ہر برائی کرتا تھا، کوئی برائی چھوٹا نہیں تھا۔
सब बुराई करते थे, अच्छा, सब बुराई करते थे। टोटल जितनी बुराइयां दिख रहा है आपको सब। और कौन सी धर्म से ताल्लुक रखते थे? क्या चीज? कौन से मजहब से ताल्लुक रखते थे? कोई मजहब कोई पता ही नहीं था हम कौन हैं क्या है कैसे, आप पता चला मुसलमान हक पे हैं, कोई मजहब पकड़ लिया। हिंदू रहे होंगे, शिया रहे हों, ये मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था, मुझे ये नहीं पता चला मैं क्या हूँ। मैं सर्च कर रहा हूँ, हिंदू सर्च किया, शिया सर्च किया। अभी तक वालिद कौन से, आपके वालिद किसकी पूजा करते थे? वालिद वगैरह तो हमारे बरेलवी थे कट्टर। अब बरेलवी कहते थे, अब ये क्या है पता नहीं, हम उनको छोड़ दिए, बहुत दिन चक्कर नहीं है। कट्टर बरेलवी थे? कट्टर बरेलवी कहते थे हम, कट्टर बरेलवी। हम कहा कट्टर का हो, कहने कट्टर बरेलवी रहे। हम कहा कट्टर मतलब का होते, तो कहें कि मतलब 5-6 महीना हुआ आपको मुसलमान ये दावा किए हुए कि हम मुसलमान हैं। जी जी जी। और अभी मुसलमान, अभी इसके पहले समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या था, और हिंदू था, बजरंगी था, बरेलवी था, अहले हदीस था, क्या था। 5-6 महीने में आपने पूरी कुरान समझ डाली और पूरी हदीस समझ डाली है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कुरान पढ़ा हमने और समझ में आया जो भी बातें, मुझे लगा कि हाँ यार। अच्छा, ये कुरान में कौन सी आयत है, किस पे अमल किया जाए, किस पे ना अमल किया जाए? अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब तक जो समझ में आया, अगर आपको समझ में आया तो मुझे बताइए। अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाह मतलब क्या होता है? बताओ लेहाल, आप पूरा कुरान पढ़ डाले, अभी आपने कहा आपको समझ में भी आ गया, आपको अभी ये नहीं पता कि कौन सी आयत पे क्या करना चाहिए, कौन सी नहीं हजरत देखिए, अब इतना कुरान हमें याद तो थोड़ी हो गया। मैं पढ़ रहा हूँ कुरान, रिसर्च कर रहा हूँ। ऊपर से दावा करते हो कि हम मुसलमान हो गए, मुसलमान हो गए। अच्छा, अभी मुसलमान नहीं है क्या? तब कौन सी किस में जाए आप बताइए। आप अभी हम तो आप वही तो हम भाई बता रहे हैं आपको। अगर अभी आपके हिसाब से मुसलमान नहीं हुआ हूँ, तब मुसलमान होने के लिए करना क्या पड़ेगा? हमें मुसलमान होना है, हमें करना क्या पड़ेगा? आपको कह रहे हैं हम मुसलमान हो गए हैं। अभी हम यही सुने हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेंगे तो मुसलमान हो जाएंगे। पढ़ लिए, हो गए, अब कुरान हदीस पढ़ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। आप यही बात शुरू में किए होते, मामला नहीं होता। अब आप कहते हैं हम कुरान और हदीस को जो है पढ़ लिए हैं और कुरान नहीं, मैं कुरान हदीस देखिए, मैं कुरान हदीस को पढ़ रहा हूँ। कुरान तो पूरा एक बार मैंने पढ़ लिया तर्जुमा से, तर्जुमा से पढ़ लिया। तर्जुमा से एक बार में पूरा समझ में थोड़ी आ जाएगा क्या चीजें सही है क्या चीजें गलत है। आप लोग, हमें समझ में नहीं आ रहा है यार, ये मतलब इस्लाम में भी प्रकार का मामला है क्या? जब आपको कुरान में एक बैग समझ में नहीं आया कि क्या सही है क्या गलत है, तो आप अपने वालिद साहब से पूछे होते। हमें वालिद साहब गधा समझना होता तो। हाँ, वालिद साहब जब तकब्बुर करे थे कि हम ही हक पे है, हम बरेलवी है, बरेलवी शरीफ हक पे है। निकाला है कि आपके वालिद साहब आपको गधा समझ में आ रहे हैं। बिल्कुल, जो तकब्बुर करेगा वो गधा ही है, चाहे हमारे वालिद हो चाहे आप हो। आप अगर आप भी तकब्बुर करेंगे तो आप भी गधा है। ये है ऐसे जाहिल अहले हदीसों का शियार शेगा कि अपने वालिद को भी ये गधा कह देते हैं। अहले हदीस कौन है? अहले हदीस भी गधाए हैं। और बताइए। अच्छा चलिए ठीक है, अहले हदीस भी गधा है। हाँ, अहले हदीस देवबंदी बरेलवी जो अपने आप को तकब्बुर करे सब गधे हैं। तो चलिए ठीक है, आपके वालिद साहब तकब्बुर वाले हैं और गधे हैं बकरवाल। कोई भी, मैं आपको बताया, कोई भी हो जो इल्म का तकब्बुर करेगा वो गधा है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में नहीं। जैसे आपने कहा कि हम कुरान पढ़े पूरी तरह समझ नहीं पाए, तो अब मैंने कहा पढ़ रहे हैं, रिसर्च करे, फिर रिपीट पढ़ रहे हैं, एक बार में थोड़ी समझ में आ जाए। वालिद साहब से हमने कहा कि आपने पूछ लिए होते, वो बतला देते। मेरे भाई, मेरे वालिद साहब कुरान इतना पढ़े होते तो उनसे मैं पूछ लेता। अब जितना पढ़े उतना बरेली वाले कह रहे हैं बहुत हक पे हैं। जब ऐसे कह दे आप कह दिए। आप जब ये जानते हो कि वालिद साहब आपके उतना नहीं पढ़े, तो आप ये कह दो कि भाई नहीं पढ़े, आप उनको गधा होता नहीं। वो कह रहे हैं मेरे वालिद साहब जब कह रहे हैं बरेलवी एकदम हक पे है, तब ये तो गलत है ना, ये तकब्बुर हो गया ना। कैसे आपका कुरान आप अभी कुरान भी नहीं पढ़ पाए हो पूरी तरीके से, 5-6 महीना हुआ, हदीस भी नहीं पढ़ पाए, और आप सही गलत का फैसला कैसे करने लगे? इसीलिए तो मैं सर्च कर रहा हूँ। सर्च करते हैं ना लोग, सर्च करते रहते हैं, तहकीक करते रहते हैं। कहाँ? गूगल पे सर्च कर रहा हूँ, क्या नाम है, कुरान हदीस देख रहा हूँ, 360 पे चेक कर रहा हूँ, हाँ ये है ये है। अच्छा, कुरान हदीस आप देख रहे हैं? आप
और कौन, मतलब कोई आसमान से आएगा देखने कुरान हदीस? अरे नहीं नहीं, हम कहाँ ही कह रहे हैं कि आपके वालिद आप आसमान से देख। आपके कौन देखेगा? वही तो मैं कह रहा हूँ, कुरान हदीस तो हम ही लोग सर्च करेंगे और कौन सर्च करेंगे? मतलब आपके सामने आपके वालिद गधे हैं और तकब्बुर वाले हैं, इसलिए आप उनसे बात हमारे नहीं वालिद करते। गधे नहीं, जो तकब्बुर करेंगे सब गधे हैं, चाहे हमारे वालिद हो चाहे आप। नहीं नहीं भाई, वो तो आपने कहा, मैं वही उसकी तशरीह कर रहा हूँ, इसीलिए आप कर उनसे लीजिए, नहीं रिकॉर्डिंग पूछते। वीडियो डाल दीजिए, चाहे यूट्यूब पे डालिए। जो आलिम, जो हमारा बाप हो चाहे हमारे दादा हो, तकब्बुर करने अच्छा। वाले सब गधे हैं। मतलब जो इतना इल्म का आपने समझ तकब्बुर लिया, करते हैं, इल्म का जो 5 तकब्बुर महीने करते में हैं वो गधे हैं। 5-6 महीने पहले आप गांजा, चरस, अफीम, सुअर का गोश्त वगैरह सब खाते थे, आप ही ने माना है इस ऑडियो में। और 5-6 महीने बाद आप इतना समझ गए कि आपके वालिद बकौल आपके गधा और तकब्बुर वाले हो गए, आपने इतना समझ लिया। अच्छा अच्छा, ये बताइए, ये मतलब आदमी अगर कह दे सारी बुराइयां है तो उसके अंदर मतलब सहाबा के अंदर जो इसके पहले सहाबा या तबा ताबीन जो भी ईमान लाए, जो आज के डेट में अगर हिंदू ईमान लाए तो अगर वो मुसलमान बने तो उसके मतलब वो सब गुनाह किया है, अगर वापस आए तो उसको जलील करना है आपको। ये इस्लाम का तरीका सिखाया जाता है, यही बरेलवी हैं आप। पहले वाली बुराइयों के ऊपर आप पहले देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले की बुरा, सुनिए हमारी बात सुनिए मालिक, पहले की बुराइयां, जो पहले बुराइयां करके आते हैं, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि आप उसको छुपाओ, उसको बांटो मत। मैंने कहा मुझे सब बुराई हो गई, तो आप कह रहे हैं सुअर का मांस, ये वो, आपको तहकीक करने की जरूरत नहीं है। आपको ये कहना चाहिए आपने इस्लाम लाया अल्हम्दुलिल्लाह, आप मुसलमान हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, जो बुराइयां उसे भूल जाइए। आप तो जलील कर रहे हैं, जलील करने का ये काम थोड़ी होता है किसी का। आपने जो अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत की है, आपको हदीस पढ़ के सुनाओ जरा। कौन सा बताइए? आपने कहा ना अल्लाह के रसूल ने कहा सारी बुराइयां खत्म हो जाए, भूल जाओ उसको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस रहता कि मतलब कुछ लोग आए, वो मतलब सुनिए पहले हमारी बात सुनिए, अब पकड़ पकड़ अपने मत सुनिए, हमारी सुनिए। अब जब कोई कुछ लोग आते हैं अल्लाह के रसूल के पास, कहते हैं कि वो लोग बूढ़े हो गए थे, तो कहे कि अल्लाह के रसूल हमसे बहुत सारी बुराइयां हो गई हैं, ठीक है आप इस्लाम लाए, तौबा कर लिए, खत्म, पिछली बुराइयां खत्म। आप अल्लाह के रसूल नहीं कहते कि आपने ये किया है, आपने ये किया है, आपने ये किया, आप ये गिनाए नहीं, जैसे आप बधे गिना रहे हैं। आप ईमान लाए, किस तरह लाए वो आप जानते हैं, हम आपके ईमान। मैं बोल रहा हूँ मैं ईमान लाया, इसके पहले मेरे सब बुराइयां थी, सुनिए सुनिए सुनिए, इसके पहले सब बुराइयां हजरत सुनिए, इसके पहले सारी बुराइयां थी, उसके बाद कोई इस्लाम लाए तो उसको आप बताएंगे तुम सुअर खाते थे, तुम जिना करते थे। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा मेरे अंदर सारी बुराइयां थी, दुनिया की सब बुराइयां थी। सारी मतलब मुतलक हो गई, पूरी बुराइयां जितनी होती है जिसमें इस्लाम को, ठीक है जितनी बुराइयां थी तो आपको गिनाना पड़ेगा, आपको गिनाना पड़ेगा उसकी सारी बुराइयां। सनद बयान करिए हजरत। हाँ हम हजरत नहीं है भाई, हदीस की सनद बयान करिए जो हदीस आपने फरमाया, इरशाद फरमाया। मुझे हदीस का सनद तो नहीं मालूम, मैंने बता दिया आपको। वो तो मैंने नहीं देखना पड़ेगा, जी। वालिद साहब से पूछ लिए होते अपने? वालिद साहब बरेलवी है, अब वो चला देंगे बरेली शरीफ पता करे। यार तुम मेरे सुनाते एक हदीस सुना है। हाँ और जो चलिए खैर कोई बात नहीं, तो आप अगर कोई फॉलो करना हो बरेलवी का कुछ बताइए तब। क्या बरेलवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही मैं पूछ रहा था। नहीं आप जहाँ हैं वहीं रहें, बाप बरेलवी मत बनिए। मुसलमान ही रहना, ऐसा नहीं होता, मुसलमान ही रहना, बरेलवी न होना। तकब्बुरी कहे, गधा कहे, ये कहे, बरेलवी में ऐसा नहीं होता है। अच्छा ये नहीं होता है। वालिद की एहतराम करते हैं बरेलवी, वालिद की इज्जत करते हैं। ये जो आपने बताई ये निशानियां अहले हदीसों में है। अहले हदीस तो बड़ा कर रहा है। हाँ तो वही जो भी डाल दिया, अहले हदीस तो बड़ा कर रहा है। तकब्बुर बा। तो अब आप कौन से मुसलमान बने हैं अल्लाह आलम, आप वहाँ का रहा है।
आप कौन से मुसलमान बने वो तो आप ही जानते हैं। नहीं है, कौन से- पहले हदीस छोटा गधा बरेलवी और देवबंदी, उससे गधा बरेलवी महागधा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। मुसलमान में जो है आप हाँ। कौन से मतलब जो है आलिम वगैरह जो आपके नजर में मुतलकन जी। आलिम गधा है या कि कोई आलिम ऐसे हैं जिसे आप पसंद करते जो हैं? कुरान हदीस को मानते हैं, जो अल्लाह के नबी के तरीके पे रहते हैं, जो तकब्बुर नहीं करते हैं, जो सुन्नत पे हमेशा रहते हैं, जो सुन्नत पे शादी करते हैं, जो सुन्नत पे हर काम करते हैं, वो सही आलिम अच्छा। वही है। उसके बाद जो भी है सब गधे हैं। अच्छा तो कोई आलिम बताओ, एक आध आलिम। अब मुझे तो अब इसके बारे में पता नहीं, लेकिन जो होगा वो होगा। अरे मुझे यार मुतलकन तौर पे जो पूरे दुनिया में उलमा है सब गधे हो गए या कोई आलिम है जिसको आप पसंद करते होंगे? नहीं, जैसे जितना हम अब एक वालिम में पसंद जितना है, बरेली देवबंदी अली सब गधा है यार। अच्छा तुमको ये तुमको एक छोटा गधा देवबंदी उससे बड़ा, बरेली महागधा। अच्छा तुमको एक भी आलिम पसंद नहीं है भाई? एक को जितना आलिम दिखा देते बरसाती मेघा दिखाते हैं, तो तर तुम तर कलमा पैसा लेके तुमको कटराते कलमा हैं। किसने पढ़ाया हाँ? भैया? हाँ? कलमा किसने पढ़ाया तुमको फिर? कलमा हाँ। कलमा कोई पढ़ाता है क्या? अरे मुसलमान बने होंगे तो कुरान हदीस का एक सब कुछ एक किया एक होगा। शख्स थे, एक शख्स थे, वो बेचारे उनका नाम मुबस्सिर साहब था। वो हमें कलमा पढ़ाए थे कि भाई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए। हम कहा ठीक है इंशाल्लाह पढ़ लिए। और पढ़ने के बाद और कुछ बताया कि ऐसे ही छोड़ दिए? नहीं, बस इतना पढ़े। उसके मतलब पहले क्या कहते हैं, जब वो कलमा पढ़ाए उसके बाद इस्लाम के बारे में बताया, आपको ऐसे करना है, ये तरीका, ये सुन्नत तरीका है। मैंने कहा ठीक है, अच्छा फॉलो करेंगे। नमाज पढ़ने के बारे में बताए होंगे? बताए, नमाज के बारे में भी बताए। नमाज में हाथ कहाँ बांधते हो? नमाज में कभी हम नाक के नीचे बांधते हैं, कभी नाक के ऊपर, कभी सीने पे, 3 जगह बांधते हैं। अच्छा क्या हुआ भैया? हाँ, हदीस तीनों में बताया था ना, अल्लाह के रसूल नाक के नीचे बांधते थे, अल्लाह के रसूल नाक के ऊपर बांधते थे, सीने भी बांधते, हम तीनों बांधते हैं भाई। कभी एक आध टाइम नीचे बांध लेते हैं, कभी एक आध टाइम ऊपर बांधते, कभी सीने बांध लेते हैं। अच्छा तीनों हदीस दिखाए, अगर आप कोई एक हदीस दिखाइए उस पे बांधे हम तब। हम तीनों तरीके से नमाज पढ़ते हैं। जी जी, जो अल्लाह के रसूल का तीनों हदीस मिल गया था ना, हमें दिखाया तो हमको ठीक है, तीनों तरीके से पढ़ेंगे। अल्लाह पाक देखिए, हम किसी मौलाना का चक्कर में रहेंगे तो अल्लाह पाक अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फंसा लेंगे। अगर आप क्या कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तीनों तरीका मिला ना, तीनों हमें दिखा दिए तो हम तीनों तरीके से करते हैं। और बताइए। हाँ तीनों बता दिए, आप तीनों तरीके से करते हैं। जी जी, नाक के नीचे, नाक के ऊपर और सीने पर। अच्छा, इस तरह आप नमाज पढ़ते हैं। और रफलिया देन वगैरह करते हैं कि नहीं? रफुल दैन मतलब कभी एक बार भी करते हैं, मतलब अल्लाह अकबर करने पर। कभी कभी रुकू जाते, रुकू उठते वक्त भी रफुल दैन करते, कभी नहीं करते हम, क्योंकि अल्लाह जैसा दिन में आए वैसा नमाज पढ़ लिए जी, जैसा दिन में आए वैसा नमाज पढ़ लिया आप। दिन में नहीं चलेगा ना। अल्लाह रसूल ने ऐसा ही किया। एक जगह हदीस में रहता कि अल्लाह, बुखारी की हदीस रहता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मतलब जब अल्लाह अकबर कहते तब रफुल दैन करते, जब रुकूम जाने लगते तब रफुल दैन करते, जब खड़े होते तब रफुल दैन करते। तो मैं करता हूँ ये 3। इसके बाद कभी कभी मैं नहीं भी करता हूँ, जब किसी देखता हूँ इमाम नहीं कर रहा है तो नहीं करता हूँ कि यार वो वाली हदीस याद कर लो। अल्लाह रसूल की एक हदीस और है, कोई एक ही बार रफुल दैन किया, उसके बाद फिर नहीं किया। सही है, तकबीर तहरीमा के बाद नहीं की। हाँ, तकबीर तहरीमा के बाद हाँ, मतलब आप सारी हदीसों पे जो है इस तरह अमल कर लेते हैं, ताकि अल्लाह रसूल हमें भाई पकड़े ने। हम हर चीज मैनेज करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे अगर मान के लिए बरेलवी के पीछे नमाज, हम सबके पीछे नमाज पढ़ते हैं, बरेलवी अहले हदीस देवबंदी सबके पीछे। लेकिन अगर जिसके अंदर तकब्बुर देखते हैं, दाढ़ी साफ देखते हैं, पूरा अम्मा दिखते हैं, तो उनके पीछे नहीं पढ़ते नमाज। फासिक के पीछे नमाज होगी भी नहीं ना। हाँ, जैसे जो दाढ़ी नहीं रखा है, और उसके बाद क्या कहते हैं। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के हैं भैया? मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश, लखनऊ। अच्छा, कहाँ है अभी इस वक्त? अभी हम लखनऊ। अच्छा, लखनऊ। क्या काम करते हैं? मैं सिविल इंजीनियर हूँ, आर्किटेक्चर डिजाइन घर के नक्शे को। घर के नक्शे वगैरह बनाते। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम रियल ऐसे तो एहसान है, मिस्टर एहसान अली। यार मेरा भी नाम इंसान अली, मेरा भी नाम है। चलिए, माशाल्लाह माशाल्लाह।
एक्चुअली देखिए अब क्या आप हाफिज हैं, कालिम हैं, क्या हैं, पहले बताएंगे थोड़ा। कुछ नहीं भैया, मैं भी तालिब इल्म हूँ। मैं एक्चुअली देखिए मुझे ये नहीं समझ में आया आज तक कौन सा फिरका हक है, हमें समझी नहीं। मैं ये जो सोचता हूँ जो बातें सही है उसे फॉलो करता हूँ, जो कुरान हदीस से मिलता है वही करता हूँ, बहुत दिमाग नहीं लगाता हूँ। बरेलवी हक पे, देवबंदी हक पे, जो तकब्बुर करता है सब गधे हैं, बस ये जानता हूँ। जो तकब्बुर करता है सब गधे हैं। हाँ, सीधी बात है, उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत। नहीं, ये तो खैर ठीक है आपका एहसान साहब, लेकिन खैर चलिए मैं आपको फिर फोन करूंगा इंशाल्लाह। आपको मैं बताऊंगा, अगर आप समझेंगे तो बताऊंगा, नहीं अगर आप समझाएंगे नहीं समझेंगे तो नहीं, उसमें बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप एनी टाइम फोन करेंगे, समझेंगे, क्यों नहीं समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे। जो हक बात है, जो अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात रहेगा 100%, चाहे जब बताएंगे, एनी टाइम, आधी रात, 24 घंटा सेवा में रहेंगे। अच्छा ये बताएं इस्लाम में कितनी चीजें हुज्जत है एहसान साहब? मतलब हुज्जत क्या चीज होता है हजरत, बता दीजिए थोड़ा। जानते हैं इंजीनियरिंग में हुज्जत तो पढ़ाया नहीं गया है। आपको हुज्जत नहीं पढ़ाया गया? नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। हुज्जत अगर बताएंगे तो वो प्रोफेसर साहब दौड़ा लेंगे। तो हुज्जत बताएंगे? आप बताइए, आप इतना कुरान हदीस पढ़ लिए, समझ गए, आपको समझे नहीं हजरत, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हुज्जत क्या होता है? क्या होता है हुज्जत, थोड़ा हिंदी में और बता दीजिए ना। नहीं, हुज्जत का मतलब होता है कि जैसे कि अच्छा कोई नहीं जानता, जैसे मान लीजिए किसी कोई चीज नहीं पूछ रहे हैं, उसको नहीं आता है, तो काम क्या हंसना है उसको, उस पे मतलब तरजीह देना है? हंसना नहीं है, हमको हंसी आप पे आती इसलिए है कि आप कहते हैं कि हम बस कुरान हदीस को मानते हैं, लेकिन अगर सर्च कर रहे हैं जहाँ नहीं आता वहाँ आप हंसेंगे तो उसको समझाना। इस्लाम अल्लाह के रसूल यही सिखाए हैं आपको। नहीं, गूगल पे सर्च नहीं करेंगे ना, गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? मैं सर्च कर लूंगा हुज्जत के बारे में, अगर मिल जाएगा जान जाएंगे। अगर मैं बता देता हूँ आपको, आप गूगल पे क्यों जाएंगे, मैं बताए हुज्जत इसको कहते हैं कि जैसे कि जो जिस चीज पे अमल किया जाए, जैसे जिस चीज को माना जाए। जैसे आप हैं, अगर आप मुझे कोई कहे कि भाई एहसान साहब की बात आपके नजदीक हुज्जत है, तो हुज्जत का मतलब ये होगा कि भाई हमारे नजदीक एहसान साहब की बात मोतबर है, मानने लायक है। आपको क्या एतराज है बताइए, मैं जो है करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो हुज्जत का मतलब यही होता है। तो जैसे मैं ये आपकी जुबान में कहता हूँ कि इस्लाम में कितनी चीजों पे अमल किया जाए, बाल्टिया जाओ तो बाल्टिया तो दे दियो बाल्टिया। तो इस्लाम में कितने चीजों पर अमल किया जाए? हाँ, मतलब कितनी चीजें हैं जो जिस पे अमल किया जाए, जैसे कुरान हदीस। और कुरान हदीस ही तो जानते थे, और कुछ है क्या? कुरानी हदीस जानते थे, और जो आपको वो क्या नाम बताया मुबस्सिर साहब ने, मुबस्सिर, वो आपको सिर्फ कुरानी हदीस बताए? वही बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें कि मेरे रस्सी को मजबूती समझना, कुरान और हदीस से ही बताए थे। और उसके अलावा और कुछ तीसरा अगर कुछ हो तो बता दीजिए, वो भी पकड़ ले इंशाल्लाह। नहीं तो किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह ने, हाँ किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह यही बताया। ये बगल में कौन है आपसे जो बोल रहा है? ये हमारे साथी हैं सेक्रेटरी इंजीनियर साहब, हम लोग दोनों लोग साथ हैं, काम ऑफिस में करते हैं। नहीं तो वो जो आपको बताए भैया ना इंजीनियर साहब, पैसा कमाने के लिए, तो आपने खैर चलिए जिंदगी को आपने ठीक कर लिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग के दुआओं से, अल्लाह के एहसान है कि आखिरत आपका खराब हो जाएगा, ठीक है। मेरा आखिरत खराब हो जाएगा? हाँ, जिस हिसाब से वो आपको बताए हैं जी, कुरान और सिर्फ हदीस, ठीक है। जैसे एक आयत को समझने के लिए कुरान की जी एक तो तर्जुमा होता है जी, और दूसरा तर्जुमे की तफसीर होती है, जिसको सलफ़ सालिहीन ने समझा है हमसे पहले। उनको वो कैसे समझे थे? जिन्होंने पूरी जिंदगी जो है सिर्फ इसी में सर्फ कर दिया। वो इंजीनियरिंग नहीं पढ़े थे, आर्किटेक्चर नहीं पढ़े थे। अच्छा, मतलब जैसे मान लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुनिए एक मिनट हजरत, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसका तर्जुमा क्या होगा? सुनिए तो, मुझे थोड़ा पता है, मैं चल रहा हूँ, आप पे आ रहा हूँ तुरंत, इसी बात को थोड़ा क्लियर कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए। अब इसमें क्या लोगों ने सर्च किया है? नहीं, जैसे सुनिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप यार बहस अगर करेंगे तो फिर वो बताते क्यों नहीं हो?
अच्छा तो मैं बताइए बता रहा हूँ, तो आप सुनिए या तो फिर। बताइए। हाँ तो वही तो सलफ़ुस सालिहीन जो होते हैं, जो हमसे पहले बड़े बड़े इमाम मुहद्दिसीन आए, मुफस्सिर जी। कुरान आए, जिनके जरिए से हमारे पास तर्जुमा पहुंचा, जी जी जिनके जरिए से हमारे पास तफसीर पहुंची, जी 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 तो कुरान को समझने के लिए तफसीर पढ़ना जरूरी है। ठीक है। तफसीर। हाँ, तफसीर। और हदीस समझने के लिए हदीस की शरह पढ़ना जरूरी है। तफसीर। जैसे दुनिया में बहुत सारे फिरके घूम रहे हैं, तो वो यही कुरान और हदीस का ही दावा कर करके और यहाँ वहाँ भटक गए। अच्छा, ये अहले हदीस जो अपने आप को कहते हैं, ये कहाँ से वो करते हैं? ये भी कुरान और हदीस कहते हैं भाई, हम कुरान और हदीस पे अमल करते हैं, समझ गए। है ना, वो बड़ा गधा समझना होता है। हाँ, वो अहले हदीस तो गधा, अब हम क्या बताएं आपको। खैर, नहीं हमें हाँ। तो पेवर गधा समझना होता है। हाँ, हमें पेवर गधा क्या समझना कह रहे हैं? हमें पेवर हाँ। गधा समझना। जी जी। एहसान साहब। जी जी हेलो। जी ठीक है, मैं फिर दूसरी बार मैं कॉल करूंगा आपसे, ठीक है, फुर्सत में। इंशाल्लाह फ्री होइएगा तब हाँ। बात करेंगे आपसे। हाँ ठीक ठीक, चलिए। अस्सलाम वालेकुम।